covalent bond and dot cross and all. तो जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड. Right. So in this again, as like the first few topics in this chapter are roughly the same as you have done in IGCSE, okay? Dotted cross diagram or stick diagram, line diagram जिसको हम बोलते हैं. लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे भी करते हैं like which are other than the normal valency or octet rules that you people do. Like आपने पढ़ा है कि octet rule is like the need of an atom to complete outer shell with 8 electrons, right? तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि some of the atoms could actually exceed the octet rule. I mean, they could have more or less than 8 electron in their valence shells as well, right? तो वो एग्जांपल्स भी हम करेंगे, लेकिन स्टार्ट में we'll just do the ones which are according to the octet rule. A covalent bond is actually formed by sharing of electrons between the atoms. Covalent bond is formed by the sharing of electron. Ionic bond is like formed by the transfer of electron. इसमें sharing होती है. अब ionic bond can never be formed between the atoms of the same element. All right. Like one element, say sodium, can't make ionic bond with the sodium again. In fact, ionic bond can't be formed between two metals as such, right? But covalent bond can be formed between the atoms of same element. जैसे hydrogen H2, hydrogen, hydrogen, chlorine, chlorine. This kind of like these kind of statements come in MCQs especially, right? उसमें ये चीज आपको help करेगी. एक सेकंड, ये मैं लिंक दोबारा भेज दूं. So in this case, as you know, like ion covalent bond के case में we have the sharing of 2 electrons between the atoms that makes single covalent bond. फिर sharing of 2 pairs of electrons, double covalent bond, 3 pairs of electron, triple covalent bond, right? Single bond को हम 1 line से दिखाते हैं, double bond को हम 2 lines के साथ दिखाते हैं, triple bond with 3 lines between the 2 atoms as such. तो अब उसपे जो direct अगर हम examples पे चले जाएं, dot cross diagrams और सारा, so usme we'll start with the smallest example, that's like H2. So if we draw dot cross of H2, इसमें ionic bond में तो सिर्फ dot and cross diagram बनती है, but I mean covalent bond में we not only have dot cross diagram but we have line diagram also, right? Line diagram or stick model. And again, we don't need to draw those fancy circles or atoms. We just can put down the elements and write electrons around them, right? अगर किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि शो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, तो फिर आपको वो सर्कल्स बनाने पड़ते हैं. तो अब ये H2 में अगर मैं सिर्फ आउटर शेल के साथ ही, लाइक इसका तो वैसे भी एक ही शेल है, तो अगर मैं इसका डॉट क्रॉस बनाता हूँ तो डॉट एंड क्रॉस फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स, डॉट फॉर 1, क्रॉस फॉर द अदर. तो ये तो इसकी डॉट क्रॉस डायग्राम हो जाएगी. और सिंगल बॉन्ड है तो वी शो इट विद अ सिंगल लाइन, राइट? तो इस केस में कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग डॉट क्रॉस भी बनाएंगे और स्ट्रक्चर, इसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और डिस्प्लेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लाइन डायग्राम भी कहते हैं, स्टिक डायग्राम भी कहते हैं. डॉट क्रॉस नहीं कहते आप इसको, ठीक है? डॉट क्रॉस ये है. तो इस केस में हम लोग दोनों ट्राई करेंगे, स्ट्रक्चर एंड डॉट क्रॉस. तो जो आसान एग्जांपल्स हैं वो हम पहले कर लेते हैं. आप लोग भी अगर थोड़ा खुद ट्राई करेंगे. बस हाँ, क्वेश्चन में बड़ा क्लियर बताया होता है. आई मीन इट सेज ड्रॉ डॉट क्रॉस डायग्राम
of this and that by showing outer electrons only, or it might say draw dot cross by showing all the electrons in the atoms. बड़ा क्लियर बताया होता है. बट अगर ये नहीं लिखा हुआ और आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HCl और अमोनिया, तो इट मींस कि आपको सिर्फ उसकी लाइंस के साथ बॉन्ड्स दिखाने हैं कितने. तो अगेन जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते पूरा, उन्हीं के मार्क्स कटते हैं. बिकॉज अगेन आयनिक बॉन्ड में भी आई सेड दिस, इफ यू सी अ क्वेश्चन इज इजी स्ट्रक्चर्ड पेपर में स्पेशली, तो फिर उस पर यू हैव टू बी बिट केयरफुल, बिकॉज उसी में कोई ना कोई ऐसा ट्रिक उन्होंने रखा होता है कि इसमें नंबर कटते हैं. तो अगर आप देखें कि वाटर का डॉट क्रॉस आ गया या अमोनिया का आ गया और आप कहें ये तो बड़ा आसान है, जल्दी से बना दें, एंड यू मिस्ड ऑन द स्टेटमेंट दैट सेड ड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने सिर्फ बैलेंस शेल बना दिए, तो फिर ज़ाहिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको उसके. अब HCl के लिए, अच्छा बाय द वे, जो कॉमन एटम्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्ड में, उनके मैं प्रोटॉन नंबर इधर साइड पे लिख देता हूँ. वी हैव हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन 7, फिर फास्फोरस 15, सल्फर 16, ऑक्सीजन 8. अच्छा आप कार्बन भी 6. अच्छा आप देखें कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक जो आपके सिलेबस में दे आर एक्चुअली मेड बाय दीज 7-8 नॉन मेटल्स, लाइक 80% ऑफ देम. बहुत ही कम होगा कोई इनसे डिफरेंट एलिमेंट आपको उनमें नजर आए. तो एक तो इनके प्रोटॉन नंबर आपको थोड़े रफली याद ही होने चाहिए, रादर देन गोइंग टू periodic table ऑल द टाइम. तो अगर प्रोटॉन नंबर नहीं भी याद, तो यू नीड टू ट्राई एंड नो देयर वैलेंसीज, राइट. क्योंकि अगर आपको वैलेंसी पता है तो यू कुड एक्चुअली ड्रॉ डॉट क्रॉस विदाउट प्रोटॉन नंबर इवन, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे. तो लाइक इनके ग्रुप नंबर आपको अगर पता है तो इट विल रियली हेल्प टू डू द डॉट क्रॉस फास्टर. और बहुत से MCQs में दिस इज नीडेड. लेकिन अगर एक स्टूडेंट हर क्वेश्चन के ऊपर जा के प्रोडक्ट टेबल देखता है कि कार्बन का प्रोटॉन नंबर अभी भी 6 ही है कि नहीं, चेंज तो नहीं हो गया, तो उसका टाइम वेस्ट होगा, जाहिर सी बात है. ठीक है ना. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छा जो स्टूडेंट है ना केमिस्ट्री में, ऑब्वियसली अच्छा या बुरा तो नहीं कहना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड, शुगर कोट जैसे केमिस्ट्री पसंद है, तो दे एक्चुअली नो दिस स्टफ. आई मीन दे प्रिपेयर्ड बेटर देन दैट द अदर्स. तो ये जरूर करें, इनसे फर्क पड़ता है. अच्छा अब HCl में हाइड्रोजन shares one of its electron, the only electron it has, with chlorine's outer shell which has 7 electron. Chlorine is in group 7, 17, 2, 8, 7 के हिसाब से क्रॉस अगर हम क्लोरीन के लिए बना रहे हैं, तो this would be the valence shell dot cross of HCl. ठीक है. अच्छा अब before I go further, in the valence shell of HCl, like this pair of electron dot and cross is actually shared between the two atoms. Hydrogen पे भी जाता है this pair of electron, and it goes on chlorine as well because it's shared, right? But in this diagram, this pair of electron is actually called bond pair. Bond pair. So the dot and cross pair is actually the bond pair, the shared pair भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है ना, bond pair और shared pair. And these electrons, like the crosses, all of them, they're called lone pair, right? So you need to know this term because both MCQs may we need this. So dot and cross pair or the bonding pair is called bond pair or shared pair, and the other electrons are like called lone pair, right? How do you need this in some MCQs especially? So if I say, for instance, what is the number of lone pair in the valence shell of chlorine? कितने? Pair 3 है. What is number of electrons in lone pair? तो फिर 6. Pair में 3 pairs. And the number of lone pair in the valence shell of hydrogen? 1. No lone pair in hydrogen, right? Bond pair. अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, अब द थिंग इज कि आपके पेपर में देयर वाज दिस सेक्शन बी, एमसीक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ. स्ट्रक्चर्ड पेपर नेवर हैड सेक्शंस.
आमना आई नो दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस. नेट का अभी भी कोई इशू है तो आवाज लैग करी, आई नो दैट. लेकिन आई विल जस्ट सेंड यू द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, उसमें ज़ाहिर है आई होप मसला नहीं होगा. तो सो आई वाज सेइंग कि एमसीक्यूज के पेपर में वी हैड सेक्शन बी. First 30 questions were like A, B, C, D MCQ straight questions. But जो section B था, last 10 question 31 to 40, they were like statement based questions. Three statements, statement 1, 2, 3. If all three correct, तो option A, 1 and 2 correct, तो ये really tricky portion. अब last year what they done, they removed that section. वो निकाल भी दिया एमसीक्यू से और टाइम भी 15 मिनट बढ़ गया हमारा, पहले कम था. I mean, physics, perhaps bio even was 1 hour 15 minutes, but chemistry was 1 hour. Although chemistry MCQs is longest of all the papers. मतलब students से ये बताते हैं बात. As a teacher, we know कि टाइम कम था उसका. अब this thing in a way is not good because जो सबसे अच्छा बेस्ट सेक्शन था स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन के लिए, they just took it away. अब जो वर्कशीट्स में आपको शेयर करूंगा या दूंगा, उनमें सेक्शन भी बना हुआ है, आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. इस तरह की जो स्टेटमेंट्स मैं जो बीच बीच में बोलता हूँ, they're actually for such questions like number of lone pair in the valence shell of hydrogen is 0. ठीक है, no lone pair. Bond pair obviously एक है, तो ये चीज, ये टर्म आपने फ्यूचर में याद रखनी है फॉर ऑल द कंपाउंड्स. अब इसके बाद अगर आप लोग खुद ट्राई करें, कुछ मैं सिंपल बेसिक कंपाउंड्स लिखूंगा यहाँ, ठीक है, और उनके डॉट क्रॉस बनाए, फिर मैं भी ड्रॉ करूंगा. एंड देन ऑब्वियसली इफ यू हैव डाउट्स इन दोस्त तो आप पूछें, अदरवाइज फिर हम ऐसे एग्जांपल्स पे जाएंगे जो ए लेवल के हिसाब से जरा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स ट्राई दिस अमोनिया NH3. And then I mean draw valence electrons only again, just like HCl में हमने बनाया, सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है. और लाइन डायग्राम भी बनाए साथ. एक सेल की लाइन डायग्राम वुड बी लाइक अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड between hydrogen and chlorine. And then we'll do it for water. CO2 and methane CH4. That Al2CO6 was the bonding and dative covalent bond with the dative bond, yes. That's our next topic actually, dative bond or coordinate bond. सारे बना लिए, इतना जज्बाती नहीं होना. बाकी भी ट्राई करें.
Okay, so let's do them one by one. For ammonia, nitrogen's proton number is like 7, so 2, 5. Nitrogen is in group 5 actually. तो इसके outer shell में 5 electrons हैं. तो nitrogen क्या करता है कि out of the 5 electrons, it actually shares 3 of the electrons with 3 hydrogens. And one pair of electron is left on nitrogen. That makes it 8 electrons for nitrogen, right? तो हाइड्रोजन क्रॉस के साथ 3 hydrogens would come around and share. Hydrogen follow duplet. I mean, hydrogen needs only 2 electrons to complete itself. तो इसके केस में we have 3 bond pair and 1 lone pair in the valence shell of nitrogen. So octet for nitrogen is complete and stable. अब हमारे पास देखो 1 2 3. So ammonia has 3 single covalent bonds, right? अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे displayed, तो we'll draw 3 single lines in 3 different places. We won't say it has a triple bond. Triple bond is like in one place you have 3 lines, एक ही जगह. हाँ, तो NH3 में we don't have any double or triple bond. It's all 3 single covalent bonds. For water again, oxygen is in group 6. So outer shell of oxygen has 6 electrons. Of the 6 electrons, oxygen shares 2 electrons on the 2 sides with 2 hydrogen. And still after that, oxygen has 2 lone pairs, right? Dot oxygen के electrons हैं, cross hydrogen. So 1 2 3 4 5 6 for oxygen and 2 for the hydrogen. Again इसमें 2 bond pair and 2 lone pair in oxygen's valence shell, right? इसका जब हम displayed या line diagram बनाएंगे तो it would be like 2 single covalent bonds for water. अब CO2 में carbon again is in group 4 and its proton number is 6. Its outer shell will have 4 electrons. तो अब होगा क्या कि कार्बन अपने 4 electrons शेयर करेगा on 2 sides with 2 oxygen. तो 2 crosses with 2 oxygen. ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 में से उसने 2 इधर शेयर किया और 2 पेयर उसके पास बच जाएंगे. तो 1 and 2 इधर और 1 and 2 इधर. Now this is the dot cross diagram of CO2 with valence electrons only, right? अब अगर मुझे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है जी ड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, तो फिर आप सर्कल्स बनाओगे अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे और अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाओगे तो इट विल लुक जम्बल्ड अप. तो फिर सर्कल्स बनाएं, अदरवाइज वैलेंस शेल विद सिंबल्स ओनली. अब यहाँ पर देखें, दिस इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स द सेकंड पेयर. इट हैज टू बी डॉट एंड क्रॉस पेयर, ठीक है ना? तो ये डबल बॉन्ड बन गया. इधर भी मेरे पास 1 and 2 पेयर. तो CO2 में वी हैव 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स. अगर मैं इसको लाइन डायग्राम में बनाऊंगा तो there'll be 2 lines on 2 sides of carbon, and that's how like the valence shell of carbon is complete with 4 4 8 electrons, और ऑक्सीजन के पास भी 4 6 8 4 6 8 octet complete. So how many bond pair oxygen has in CO2? 4 bond pair. Excellent. Wrong answer. How many bond pair oxygen has in CO2? 1 oxygen, not both oxygen. 1 oxygen. 2 bond pair. And lone pair? How many lone pair carbon has in CO2? No lone pair, right? So how many bond pair? Carbon's outer shell, how many bond pair? 4. देखो ये वाले भी तो काउंट करोगे ना आप, ये भी करोगे, कार्बन के पास ही है ना सारे. तो एक्चुअली ऑक्टेट रूल के हिसाब से an atom's valence shell must have 4 pairs in its outer shell. ये रूल लॉ नहीं है by the way, but typically an atom other than hydrogen would have 4 electron pairs in its outer shell after bonding. अब वो 4 में से lone pair भी होंगे, bond pair भी होंगे, right? Like if you look at ammonia here, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में आप देखो तो 4 पेयर हैं, 1 lone pair 3 bond pair, right? इधर ऑक्सीजन में भी 4 पेयर हैं.
So it typically goes like 4 pair every time. लेकिन again I would say कि it's not a fact क्योंकि इसके बाद जो examples मैं आप लोगों को कराऊंगा उसमें ये चीज follow नहीं होती. It might be more or less than that. अच्छा, अब मीथेन का डॉट क्रॉस अगर आप लोगों ने बनाया है तो could you tell me what sort of bonding methane has? How many what sort of bonds? All बॉन्ड पेयर नहीं, आई मीन इस तरह से आप मुझे बताएं कि हाउ मेनी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स इट हैज. It has 4 single covalent bonds, right? तो कार्बन अगेन 4 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो हाइड्रोजन कैन नॉट ऑफर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन. इट वुड बी जस्ट 4 hydrogens and 4 single covalent bonds. Again, carbon's outer shell will have 4 bond pair. Actually, जो ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं और लोन पेयर, इधर मैं लिख देता हूँ L for lone pair. Like group 4 elements after bonding have 0 lone pair in their valence shell. Group 5 elements will have 1 lone pair, group 6 will have 2 lone pair, and group 7 elements after bonding have 3 lone pair. This is like typically what happens. Okay, group 3 इससे पहले तो metals हैं and they don't go for covalent bonding as such. So non-metals typically start from group 4. तो ग्रुप 4 जब बॉन्डिंग में जाते हैं लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एटसेट्रा, तो देयर वैलेंस शेल इज नेवर लेफ्ट विद अ लोन पेयर. ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स गेट यूज्ड अप इन बॉन्डिंग. इनके पास 0 होता है. ग्रुप 5 में आफ्टर बॉन्डिंग दे आर लेफ्ट विद 1 लोन पेयर. अब ग्रुप 5 में नाइट्रोजन इज वन दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द टाइम. ठीक है ना, नाइट्रोजन उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रुप 5 को एट द टॉप. इसके पास आप देखो, इसके बाद एक लोन पेयर बचा है. ग्रुप 6 वालों के पास 2 lone pairs are left like oxygen. So if the bonding of oxygen is like octet, oxygen के पास bonding के बाद there will always be 2 lone pairs. अच्छा, अब ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो फिर for so many MCQs you won't have to draw dot cross to figure this thing out. लेकिन ये चीज कुछ जगहों पे फॉलो नहीं भी होगी. ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल आ जाए. अच्छा, अब बिफोर वी डू मोर एग्जांपल्स, ये एक चीज मैं इधर आप लोगों को बताऊंगा, ये काफी हेल्प करेगी आपको अनसीन कोवलेंट कंपाउंड के डॉट क्रॉस में. ठीक है, तो इसके बाद द नेक्स्ट एग्जांपल इज सच एक्चुअली. अच्छा, ये दिस इज लाइक द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर्स, राइट? इनफैक्ट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द बॉन्डिंग पावर ऑफ एन एटम, कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है. और कोवलेंट बॉन्ड में उसको हम वैलेंसी को लाइन के साथ प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चार्ज बताना वैलेंसी के साथ इज नॉट कंपल्सरी. लाइक व्हेन वी से वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. आई मीन इट्स टिपिकली -2, बट नेगेटिव चार्ज बताना मस्ट नहीं है वैलेंसी के साथ. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 मींस कि ऑक्सीजन will always make 2 bonds. Hydrogen's valency is 1, right? So hydrogen will only make 1 bond and not more than that. अब अगर मैं उसको वैलेंसी को लाइन के साथ प्रेजेंट कर दूं विद दीज एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में, तो अगर आपको ये बात पता हो तो फिर इवन प्रोटॉन नंबर की भी आपको जरूरत नहीं रहती टू ड्रॉ डॉट क्रॉस. सो हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1, ग्रुप 7 एलिमेंट्स वैलेंसी इज 1, क्लोरीन रिप्रेजेंट्स ग्रुप 7, ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, ऑल ग्रुप 6 एलिमेंट्स वैलेंसी इज 2. अब देखो, अगर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 है तो इट हैज रादर 2 ऑप्शंस. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा बस. हाइड्रोजन विल नेवर मेक अ डबल बॉन्ड. Oxygen's valence is 2. So oxygen has 2 options. Either it would make 2 single bonds or it would make 1 double bond, right? Like in CO2. तो इसके पास 2 options हैं इस तरह से. Sulfur also is in group 6. Commonly sulfur भी आ जाता है तो इसको भी मैंने इधर लिख दिया. अच्छा, अब ग्रुप 7, ग्रुप 6 और ग्रुप 5 पे अगर आप आ जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3. So nitrogen will have more options, right? So what options could nitrogen have in terms of bonding? All 3 single covalent bond like an ammonia, or
or it could make one double bond and a single bond, right? 3 lines आपने पूरी करनी है उसके साथ every time. It could make a double bond and a single bond, or yes, it could make one triple covalent bond, right? 3 lines पूरी करनी है ना, triple bond में तो 3 lines आती हैं. So it could just make a triple bond in one place. So this would happen with all the group 5 elements. अच्छा, अब group 4 रह जाता है carbon. So more valency 4. 4 valency mean more possible options, right? More different type of bonding for carbon or group 4. इस केस में कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाए तो इट कुड मेक 4 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इस तरह बना देते हैं, और 2 डबल एंड नहीं 1 डबल एंड 2 सिंगल बॉन्ड. ये 2 डबल तो बन गया ना. इट कुड मेक अ डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स. वन मोर पॉसिबिलिटी, a triple bond and a single bond, right? Now remember, when carbon would go for bonding, it could actually fit to any of these cases. अब इस चीज की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इन पास्ट पेपर से ये it happens when students stick to the notes only और वो कॉन्सेप्ट पे नहीं तैयारी करते. तो अगर ये आ गई हमने बहुत अच्छा रटा लगाया तो फिर तो गुड इनफ. लेकिन अगर थोड़ी सी एग्जांपल चेंज हुई और आपने कॉन्सेप्ट पे नहीं तैयारी की थी तो फिर बड़ा मसला बनता है. फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने नोट्स में ये नहीं कराई. बेटा कैम्ब्रिज ए लेवल में ऐसे ही देयर इज नथिंग लाइक book or notes only, right? Every year we get different things and we keep on adding such concepts in class. लेकिन आप 100% नहीं कर सकते. अब hydrogen cyanide HCN is one example where you might use this thing perhaps. Even without proton number we can draw its dot cross HCN. There were triple bond. Yes, that was fast and furious. अब अगर लेट्स से ये अनसीन एग्जांपल आ गई पेपर में, इसका आपको डॉट क्रॉस और लाइन डायग्राम बनानी है, तो व्हाट यू शुड डू इज लाइक इन ग्राफ ट्राई इट्स displayed line diagram first. मीथेन का लाइन डायग्राम वुड बी 4 सिंगल बॉन्ड बाय द वे. तो पहले ये ट्राई कर लें, उसके बाद उसको आप डॉट क्रॉस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें, you got hydrogen there, carbon, nitrogen, so try and make sense के which case each element would follow in this example. ठीक है, फिर मैं भी बना देता हूँ इसको, कोई मुश्किल नहीं, ट्राई करें. बन गई. ज्यादा नहीं सोचना, मैंने उस दिन बताया था कि आपने सोचना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सोचना, लिखना स्टार्ट कर देना. डन. डॉट क्रॉस भी लाइन डायग्राम के बाद डॉट क्रॉस बनाना है, वो भी बन गया. नहीं, अभी इधर से बता दूं क्या गलत है. देखो जरा, ये मेरी टीचिंग में यही फन रह गया बस, टू गेस द मिस्टेक्स and be happy when that guess is correct. सर मैं आपको बताता हूँ, आपने नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं बनाया? नहीं बनाया? 25 साल अभी 25 नहीं हुए भाई, 22 साल हुए. अच्छा चलो ठीक है, मान लिया. So how many single bonds are there in this compound? लाइन डायग्राम देख के बताओ. एक है, गुड, ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 1 ट्रिपल बॉन्ड. एनी डबल बॉन्ड्स? गुड, एक्सीलेंट. आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लिया. So when you get such an example, again use pencil initially, do it in graph, and that is like try and put these elements with some space in between, थोड़ी गैप से, and then try and use this thing कि जी ये कैसे stable होंगे with valency. So hydrogen can never make any bond other than single bond. तो hydrogen और carbon के बीच में तो बस मैं single line ही लगा सकता हूँ, nothing else. और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में I need to make sure carbon gets 4 lines, right? So it will be a triple bond.
बिकॉज इफ आई जस्ट पुट अ डबल बॉन्ड हियर, उससे कार्बन भी पूरा नहीं होगा 4 लाइंस, और नाइट्रोजन भी नहीं होगा. और नाइट्रोजन इन दिस केस इज फॉलोइंग दैट वन, ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन इसमें ये फॉलो कर रहा है. Now, once I make sense of its displayed structure, I can translate that to dot cross, right? तो वो क्या ट्रांसलेट करना है, जो सेंट्रल एटम है ट्राई एंड कीप इट डॉट्स, जो साइड वाले एटम्स हैं उनको ट्राई एंड कीप इट क्रॉस. अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें, बिकॉज आईजीसीएसई में इवन टीचर्स बड़ा स्ट्रिक्टली की बनवाते हैं, इलेक्ट्रॉन की, यू नो, ये डॉट इसका है, ये क्रॉस इसका है. इनफैक्ट देयर इज नथिंग लाइक की एज सच. आयोनिक बॉन्ड में तो की फिर बन जाती है, कोवलेंट बॉन्ड में की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो अगर आपको अनइजी लगता है कि दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो रहे हैं, तो यू कुड मेक डॉट्स डिफरेंट. क्रॉस तो आप डिफरेंट नहीं बना सकते ना, क्रॉस तो क्रॉस ही बनेगा, लेकिन डॉट को आप क्लियर डॉट बना सकते हो, शेडेड डॉट बना सकते हो, इस तरह से लाइन डॉट बना दें, इस तरह कर दें. तो यू हैव मेनी ऑप्शंस टू डू दैट डॉट के लिए इन वन कंपाउंड. But you can't use any other sign but dot and cross. I mean, you cannot use squares or steric sign or diamond shape or triangle or otherwise, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में ये ल्यूइस डॉट क्रॉस डायग्राम्स हैं, तो हम उसी का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, राइट. कुछ बोर्ड्स में, आईबी में और इस तरह से AQA वगैरह में हम इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट बना लेते हैं, मसला नहीं है. इधर एडेक्सल और कैम्ब्रिज में अलाउड नहीं है, अनलेस क्वेश्चन सेज इट. ठीक है, अगर क्वेश्चन ने इलेक्ट्रॉन की दे दी कोई अपनी, उसी को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, और वो देते हैं आपको. समटाइम दे से यूज Y फॉर दिस एटम्स इलेक्ट्रॉन एंड Z फॉर दिस एटम्स इलेक्ट्रॉन. फिर आपने पूरी डायग्राम में YZ लिखना होगा. ठीक है, डॉट क्रॉस के फिर मार्क्स नहीं होंगे. अब जब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड क्रॉस, और सिंगल बॉन्ड इधर और हाइड्रोजन के साथ. दिस इज वेयर आई वाज सेइंग कि अगर आपको ये लगे कि यार नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस हैं, हाइड्रोजन का भी क्रॉस है, सो वी आर ऑल परफेक्टली फाइन विद दिस डायग्राम है, वैसे कोई मसला नहीं, एग्जामिनर को कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आपको अनइजी लग रहा है तो आप नाइट्रोजन या इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट कर दें, बट इट शुड बी अ डिफरेंट डॉट देन, राइट. फिर की बना दें नीचे, लेकिन when it's not needed तो why to go in such kind of thing. Bonding electron must be different. ये प्लीज. हाँ देखो, अभी मैं पूरा तो नहीं किया इसको. ये लो, अच्छी बात है. अच्छा, दूसरा इसमें मुझे एक और चीज याद आ रही थी, बस ये लास्ट बताता हूँ, फिर A2 का टाइम हो रहा है. ये जो आप लोगों ने डॉट क्रॉस पेयर्स बनाए होंगे ना, बॉन्डिंग पेयर, इसके लिए यू कुड डू दिस प्रेफरेबली, और यू कुड एक्चुअली ड्रॉ डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस. इस तरह लाइन में ये भी बना सकते हैं. लेकिन अगर आपने ये बनाया तो फिर इसमें याद रखें, वी टेक दिस एज पेयर, दिस इज अ पेयर, दिस इज अ पेयर, राइट. ऐसे बनाओ. लेकिन अगर आपने इस तरह लाइन में बनाया इलेक्ट्रॉन एंड somehow you done this, two dots, total 3 dot 3 cross, again just like that. This will not be acceptable, क्योंकि इसमें जो पेयर है ना, वो ये सिर्फ डॉट क्रॉस ठीक है, ये नहीं ठीक. दे आर लाइक जस्ट डॉट्स एंड जस्ट क्रॉस. बॉन्डिंग पेयर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में मस्ट बी डॉट एंड क्रॉस. तो अगर इस तरह कर रहे हैं तो फिर थोड़ा केयरफुल रहे, जब सामने सामने बनाएंगे तो फिर तो उसमें मसला नहीं होगा, राइट. तो दिस इज एट थिंग. एंड अब इसको बस थोड़ा मैं यहाँ रोकता हूँ. कल जो हमने एग्जांपल्स करनी है वो सारी ऐसी जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करती, ठीक है ना. लाइक अगर मैं आप लोगों को घर पे ट्राई करने के लिए कोई दे दूं एक आध, हाँ आप लेना. हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 है, क्लोरीन ग्रुप 7 है, फिर ऑक्सीजन ग्रुप 6, नाइट्रोजन ग्रुप 5, कार्बन ग्रुप 4. वैलेंसी के थ्रू ही हम कर रहे हैं ना, जो वैलेंसी है उसकी मैंने उसको लाइन से ड्रॉ कर दिया बस. उतने इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग में यूज कर रहा होता है टेक्निकली. नाइट्रोजन की 3 है तो वो 3 यूज करेगा आउटर शेल में, जो बाकी बचेंगे वो लोन पेयर बन जाएंगे. लोन पेयर का भी मैंने इधर लिख दिया था.
A1 2 कितने बचे? हाँ, एक अगर आप लोग ट्राई करें रफ में बना लें PCl5 फास्फोरस 5 क्लोराइड, लेकिन ये ऑक्टेट के रूल के हिसाब से नहीं है, तो अगर कोई डिफरेंट चीज हो रही हो तो घबराना नहीं है। ठीक है, कल यही हमने करना है। चलो, है ना, मैं तो सारा सिलेबस ही पढ़ा दूँ। टेस्ट है। हाँ हाँ।